Hello students, welcome again for the lecture on menstrual cycle. Again, this is the third lecture for the chapter Reproduction in Lower and Higher Animals. Today we are going to study in detail about the menstrual cycle. You all know that it is a characteristic feature of the primates as well as humans. Now primates उसमें सब आ जाएंगे, chimpanzee, gibbon, gorilla, monkey, apes and all those. So it is a very characteristic feature, though the cycle timing differs. It varies from about 28 days in human to about 31, 37 days in the other primates. But before going in detail regarding the menstrual cycle, we should first study about the terms which are associated with it. First of all, we'll see some simple terms which you should know. These terms are as follows. The first term is menarche. What is menarche? It is nothing but the first female cycle, first menstrual cycle of a female. It has to be the menstrual cycle here, which begins normally at about 10 to 14 years of age. तो the first menstruation जो होगा उसको हम menarche बोलेंगे. Next is menopause. Pause से ही समझ रहा है कि there is some stoppage. So it is the stopping of the menstrual cycle, which generally happens at 45 to 50 years of age. So this is the cessation या ceasing of the menstrual cycle. Now, what is reproductive age? The age between these first two periods which we have studied, first two terms, menarche and menopause, that is reproductive age. It's generally about 30 to 33 years is the time period. The period between menarche and menopause, that is called the reproductive age. Okay. Now, if we see the reproductive age, if we multiply by the number of cycles we have in 1 year, it is about 13. 28 days का cycle होता है. So if we multiply 32 into 13, we get 416. So 416 eggs are released or are produced in this period of the reproductive age in the life of a female. So this is the reproductive age. It can be asked for a 1-mark question also. So you should know these terms. Next is puberty. Puberty, it is the age when sex organs begin to produce gametes and sex hormones and the reproductive system becomes functional. Last lecture में हमने पढ़ा था juvenile stage होती है और दूसरी जो होती है वो reproductive maturity stage होती है. तो it starts, the onset उसका कैसे होता है? Puberty से होता है. It occurs at the age of 12 to 15 years and that is the age when we start with the menarche. Okay. So this was about the certain common terms which you should be knowing. Now, coming to the menstrual cycle, you should know that it involves 4 phases. Okay, menstrual phase यानी menses या हम periods जिसको कहते हैं. दूसरी stage को कहा जाता है proliferative या follicular phase. दोनों एक ही phase के नाम है. क्यों अलग अलग नाम है वो मैं आपको बताऊंगी. तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज. एक ही फेज के दो नाम हैं. जैसे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं इजीली. द फर्स्ट फेज जो है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, 5 डेज का होता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो फर्स्ट 5 डेज की होती है और उसके बाद 6वें दिन से करीब 14 दिन तक या 13वें दिन तक हम बोल सकते हैं जो स्टेज है वो है प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज. 14th डे को होता है ओव्यूलेशन और उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज तक क्या होता है? सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस diagram. So these are the 4 phases. The sequence you should remember, it is first the menstrual phase, then proliferative or follicular phase, then ovulatory phase and then secretory or luteal phase. Now, students बहुत घबरा जाते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कब कौन सा बढ़ रहा है, कम कम हो रहा है. तो हम इसको देखते हैं. सबसे पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं. एक तो चेंज होता है ओवरी में, तो ओवेरियन साइकिल इन्वॉल्व है. दूसरा चेंज होता है यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में, तो यूटराइन साइकिल इन्वॉल्व है. ठीक है. अब उसमें ये याद रखो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है. तो ओव्यूलेशन के पहले जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद की जो स्टेज है हम उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन. ओके.
अभी आप देखते हो ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल्स बनते हैं या ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, इसलिए उसको हमने क्या कहा है, फॉलिकुलर फेज नाम दिया है। ओके, पर साथ ही साथ यूटरस की लाइनिंग में बढ़ोतरी होती है, इसलिए उसको हमने प्रोलिफरेटिव नाम दिया है। ओके, इसलिए दो नाम है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, एज यू हैव सीन हियर। Next, there is after ovulation, this is on the 14th day, and then there is the post ovulation phase. It has to be, जब corpus luteum बनता है तो उसको हम कहते हैं luteal phase. Corpus luteum किस में बनेगा, ओवरी के स्ट्रक्चर में बनता है, ग्राफियन फॉलिकल के बाद, तो इसलिए हमने उसको ल्यूटियल फेज बोला है। पर साथ ही साथ जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो कुछ चीजें सिक्रीट करता है जो यूट्रस की लाइनिंग को चेंज करता है, तो इसीलिए उसको हमने बोला है सिक्रीटरी फेज। इसीलिए दो नाम है, फॉलिकुलर फेज ओवरी से रिलेटेड है और प्रोलिफरेटिव फेज यूटेराइन से रिलेटेड है या यूटेरस से रिलेटेड है। सिमिलरली ल्यूटियल फेज ओवरी से रिलेटेड है, secretory phase uterus से related है। Now next, what are the hormones involved? अब ये देखिए hormones दो जगह के involved हैं, एक तो पिट्यूटरी के जो आपका मास्टर ग्लैंड है, यदि हम इसको ब्रेन समझें तो ब्रेन से जो है पिट्यूटरी जो वहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और यदि हम ओवरी समझें यहाँ पे, और ओवरी के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे ओवरी बना दिया और यहाँ पे हमारा uterus है। Okay, so this pituitary is guiding certain hormones. So hormones from pituitary, they are affecting the ovary, it is affecting the ovary. So what are those? They are the FSH, इसको बोलते हैं follicle stimulating hormone, और दूसरा है luteinizing hormone जिसको बोला जाता है LH। Okay, तो ये hormones निकलते हैं pituitary से, actually GnRH बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, वो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, उसका भी पिताजी बैठे हैं हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी को गाइड करते हैं कि तुम अब हार्मोन रिलीज करो, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करता है और फिर ओवरी फॉलिकल्स बनाता है। ठीक है, अभी दूसरे जो हॉर्मोन्स हैं वो दो ओवरी खुद रिलीज कर रहा है, हॉर्मोन्स फ्रॉम ओवरीज, और ये हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं ये कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, यूटेरस की वॉल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो कौन से हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस feature that hormones from the pituitary, they affect the ovary, and hormones from the ovary, they affect the uterus. So pituitary hormones are FSH and LH, and ovarian hormones are estrogen and progesterone. So this is the basic structure which you should know of the cycle. Now we'll be studying the cycle in regarding each phase in detail. So the first phase is the menstrual phase. Now it is the first day of menses. It lasts for approximately 5 days. When does this happen? When there is no fertilization. If it is not, the egg is not fertilized, so the endometrial lining which has become thick of the uterus because it was expecting fertilization, that has no role now, so the egg has to be released now, so that is why it is called as funeral of the unfertilized egg, or the periods को हम ये भी बोलते हैं, it is weeping of the uterus. ओके, तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो गई थी वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अभी एक चीज ये याद रखो कि एक हार्मोन है लेवल, यहाँ हमने लिखा है इट इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। अब कंफ्यूज होने की बात इसलिए नहीं, क्योंकि ये याद रखो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन याद रखिए, इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। सो इफ इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, अब यहाँ तो प्रेगनेंसी हुई नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है नहीं, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड ईस्ट्रोजन का भी लेवल कम हो जाएगा। ये आप यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज इन द यूट्रस द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन का काम नहीं है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन में क्या क्या निकल जाता है, ब्लड निकलता है, टिश्यू फ्लूइड्स निकल जाते हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो गई है वो म्यूकस के साथ निकल जाती है, और साथ में जो फर्टिलाइज एग नहीं हुआ है उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, तो वो भी निकल जाएगा, दैट विल बी डिस्चार्ज, ऑल दीज विल बी डिस्चार्ज थ्रू दी वेजाइना। ओके, अब जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट गई है तो दैट लाइनिंग बिकम्स वेरी थिन, जस्ट अबाउट 1 mm इन
थिकनेस दैट बिकम्स वेरी थिन। अभी ये तो चेंजेस हो गए यूट्रस में कि उसकी लाइनिंग ब्रेक डाउन हो गई है। क्यों ब्रेक डाउन हो गई है? प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है। और कितनी हो गई है? 1 mm। ओवरी में क्या होता है, अब जब ये लाइनिंग ब्रेक डाउन हो गई तो अब नई साइकिल स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए वहां पे वापस से फॉलिकल्स का बनना जरूरी है। तो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियल जो फॉलिकल्स हैं उनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। So during these 5 days, many primordial follicles will be developing into next stage, which is primary, and few of them will get changed into secondary. अब follicle बन रहे हैं तो इनको कोई गाइड करेगा। इनको कौन गाइड करेगा? follicle stimulating hormone स्टिम्युलेट करेगा कि भाई अब फॉलिकल्स नए बनाओ, मेंसेस हो गया है, अब फिर से हमें फॉलिकल्स चाहिए। तो पिट्यूटरी से मैसेज आएगा हमको ओवरी को कि नाउ यू शुड फॉर्म फॉलिकल्स। तो मैसेज किसके थ्रू आएगा? एफएसएच के थ्रू। तो मेंस्ट्रुअल फेज में आप दो चीजें याद रखोगे, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है जिससे एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है, और एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ता है जिससे कि फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मेंसेस हो रहा है, यानी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक थी वो नीचे गिर रही है, ब्रेक डाउन हो जा रही है। पर साथ ही साथ फॉलिकुलर फेज में भी ये पेज है, यहाँ पे फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फॉलिकल हार्मोन्स का जो लेवल है ये थोड़ा ऊपर है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम नीचे है। ये ग्रीन लाइन आप देखेंगे एकदम नीचे है क्योंकि यहाँ पे अभी प्रेगनेंसी नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन यानी बढ़ना, बढ़ना। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल्स का बनना। अब ये फॉलिकल्स और आगे बनेंगे, तो आउट ऑफ द 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल्स ओनली 1 डेवलप्स। मेच्योर बनना है तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगी और उसके बाद मेच्योर या उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगी। आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो ही रहा है तो उसके ही अंडर में ये मेच्योर होगा। अब ये साथ साथ याद रखना ज़रूरी है कि ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, यहाँ आप ये देखिए फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग बताया गया है। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर जो लेयर्स हैं, दिस सिक्रीट द हार्मोन ईस्ट्रोजन। रिमेंबर दैट। सो दे सिक्रीट द हार्मोन ईस्ट्रोजन। वही यही चीज यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल सिक्रीट्स द हार्मोन ईस्ट्रोजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। अभी यूट्रस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम बिगम्स टू रीजनरेट। जैसे ही 5 दिन हो गए उसके बाद एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ने लगी। तो ये बढ़ेगी कैसे? ये जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है यही कोशिश करता है कि ये लाइनिंग को और थिक किया जाए आगे की ओर। तो क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में? देयर इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं और ये ईस्ट्रोजन से क्या हो रहा है? ये लेयर जो है एंडोमेट्रियम की वो थिक हो रही है। तो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम reaches to about 3 to 5 mm। जो 1 mm हो गई थी इनिशियल फर्स्ट स्टेज में, मेंस्ट्रुअल स्टेज में, वो 3 से 5 mm हो जाती है और उसके यूट्राइन ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, ब्लड वेसल्स वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाता है। So proliferative phase, this is the second phase. You should remember proliferate यानी बढ़ना, तो FSH के अंडर में ये होगा। FSH के अंडर में होगा तो साथ में ओवरी जो फॉलिकल बनेंगी वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगी। सिक्रीट करेंगी तो ईस्ट्रोजन का रोल क्या होगा? ईस्ट्रोजन का रोल होगा यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करना। नेक्स्ट इज ओव्यूलेटरी फेज। अभी क्या हो गया? ये हो गया हमारा 6वें से 13 दिन का काम। अभी 14वें दिन का क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन इज नथिंग बट रिलीज ऑफ द मेच्योर्स this ovum or the secondary oocyte from the mature follicle. This release is called as ovulation. अब क्या होता है यहाँ पे कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस स्टेज में LH और FSH पीक लेवल पे रहते हैं और ये मैकेनिज्म पॉजिटिव मैसेज जाता है ब्रेन को कि अब फॉलिकल्स तो पूरे बन गए हैं तो हमको इसको रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज किया जाए। LH इज नथिंग बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम नेक्स्ट स्टेज बनाएगा। तो क्या होगा? ईस्ट्रोजन बढ़ा, उसी के साथ साथ LH बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं LH सर्ज, SURGE। LH सर्ज इज देयर एंड जैसे ही LH का लेवल एकदम पीक पे पहुंचता है तो ये ट्रिगर करता है नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप को, विच इज ओव्यूलेशन। और तुरंत क्या होता है? ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाती है और दिस रिमेनिंग ग्राफियल फॉलिकल इज टर्म्ड एज कॉर्पस
ल्यूटियम। ठीक है, अभी मेन फेज यही है। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है ओव्यूलेशन? बिकॉज LH हैज रीच्ड इट्स पीक। सो इसीलिए बोला गया है इनफैक्ट LH जो है दैट कॉजेज ओव्यूलेशन। Okay, so ovulatory phase is the shortest phase. It is only on the 14th day. Remember that. यहाँ पे LH and FSH दोनों पीक पे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये पीक पे हैं और इसकी वजह से एग यहाँ पे रिलीज हो रहा है। वेरी simple this is phases. Next we go to the secretory phase or the luteal. अब ये last phase है. This is the longest phase. 15वें दिन से ये again first day of the period तक रहता है, यानी 15th to 28th day तक ये secretory phase रहता है या luteal phase रहता है। जैसे आपको बताया यहाँ पे corpus luteum बन गया है, इसलिए इस phase को क्या बोला है? corpus luteal phase बोला है। Okay, so we'll just study after the release of the oocyte, the remaining tissue changes into corpus luteum under the effect of luteinizing hormone. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम हो गया, ये अपना वापस नीचे आ जाता है, यहाँ देखिए ये आ गया, पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो आप ये देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ गया है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये लाइनिंग को और थिक करता है, थोड़ा ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है पर वो कम मात्रा में करता है। ये लाइनिंग और थिक होती है, करीब 7 से 8 दिन ये थिक होती है, बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर दी egg to get fertilized. So this is the pregnancy hormone. So it इस आशा में कि शायद प्रेगनेंसी हो तो ये प्रोजेस्टेरॉन is released and the endometrial lining further thickens. So here you can see अब दो चांसेस हैं। क्या चांस हो सकते हैं? या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई रोल नहीं है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी नहीं चाहिए, तो दैट विल डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। जो लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम है वो चेंज हो जाएगा इनटू अ वाइट स्कार लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। और यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के साथ साथ वहाँ पे HCG करके हार्मोन भी रिलीज होता है, दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, which if we test after the 8 days, that if it comes positive, that means the lady is pregnant. So this is about the changes in the ovary. Now in uterus what happens? Under the influence of progesterone कौन release कर रहा है? corpus luteum. So the endometrium lining will become very thick and it will reach its peak of thickness, that is about 8 to 10 mm, and it also gets richly supplied with the blood, so it is vascularized. And there is one more hormone which is released, inhibin. This inhibin is nothing but अब follicle का काम नहीं है, if pregnancy is there तो follicle stimulating hormone को वो रोक देगा, inhibin hormone. So these are about the 4 stages of the menstrual cycle. You should go through each of these stages in detail slowly so that you can understand them properly. This is the summarizing in the graphical form. As you can see, these are the gonadotropic hormone levels. That means the hormones released from the pituitary, जो किसको अफेक्ट करेंगे? ओवरी को। ओवरी को अफेक्ट करेंगे, ओवरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी, दीज आर दी ओवेरियन हार्मोन्स, एंड ये हार्मोन्स किस पे एक्ट करेंगे? यूटरस पे। यहाँ आप देख सकते हैं ये फेजेस दिखा रहा है। फर्स्ट फेज 0 to 5 मेंसेस है, जहाँ पे यूट्राइन वॉल कम हो रही है, यूट्राइन वॉल कम हो रही है, पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है क्योंकि ये फॉलिकल्स बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिव फेज, अगेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रोल के अंतर्गत ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे, ईस्ट्रोजन ये लेवल इस थिक लाइनिंग को थिक करेगी। उसके बाद ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन में LH का हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ेगा, सर्ज आएगा जिससे कि ओव्यूलेशन हो जाएगा। उसके बाद LH का हार्मोन कम लेवल कम होगा, पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन यानी प्रेगनेंसी हार्मोन, तो इसका लेवल बढ़ेगा और ये साथ में ये लेयर्स को थिक करेंगी। Once you understand this cycle, it's very easy to write down the points, and always remember to write in this type: the changes in the ovary, the changes in the uterus. Even if you write one point correct, you'll be able to secure good marks. Okay, just go through each of the phase properly and slowly. This was all about the menstrual cycle. Thank you. Have a nice day.
19:50 सब 20-20 मिनट के ही हो रहे हैं मेरे। ठीक है, इससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं रहता। अभी want to ink anecdote discard